winter season has started in the Kashmir Valley and almost all the agricultural and horticultural activities are at its standstill because during the winters neither the crops grow nor the vegetables in open fields. But one opportunity is with the farmers. They can grow mushrooms inside their homes. Mushroom cultivation is getting popular among the farmers as well as among the youths because it is an alternative employment for the youths in different parts of the Jammu and Kashmir as well as country. But we have with us the agriculture officer of Jammu and Kashmir Agriculture Department who are helping and facilitating the mushroom growers across the Kashmir Valley so that it could generate alternate economy for the farmers. Yunus, please tell me why mushroom is so getting popular among our food consumption, not only in the country but also in the Jammu and Kashmir. See, as far as the agriculture cultivation is concerned, here we need the land for cultivation of vegetables, fruits and other pulses, cereals, etc. This is only where we need just room or a growing room. Because here we don't need any sort of room. Here we need a good quality room where we have to set some parameters like temperature, humidity and darkness, and we have to see the ventilation is here. Go, it is a land agriculture. Anyone, any farmer in the rural areas or the urban areas who want to come in this venture, he don't need any sort of land. He just need a good room for this venture. Or if he want to enhance this venture to a next level, then he had to go for the cropping control rooms where he can establish 10, 20 or maximum number of units. Please let me know that what kind of facility the Agriculture Department of Jammu and Kashmir provide to all those youths or all those farmers who are interested in growing the mushrooms at their home. See, right now I am working at the Integrated Mushroom Development Center, Lal Mandi. We have the main focus to provide the quality supon and the compost to the mushroom growers throughout the valley, even in the Ladakh. And it is the center of excellence. We are providing the trainings to the mushroom growers or any further farmer in the women folk. Because many women are in this venture right now. And we are also providing the trainings to the college and university students, because this subject has also introduced as the skill development course in many colleges and universities. So our role is, our efforts are always there to boost the sector, because this is a very lucrative business and a good venture. If any employed youth or anyone who don't have land at his home, he just had to establish this unit of mushrooms at his home in a room, or if he want to go to the next level, then he can go for the cropping control rules. So this is a new, you can say, the opportunity or avenue for all those unemployed youths as well as the farmers who can grow the mushrooms at their home in any weather condition or in any kind of situation. देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो मशरूम विंग है, अभी हम इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर जो कि लाल मंडी में है वहाँ से आए हैं। इस मशरूम विंग का जो इनिशिएटिव है, इनका जो एफर्ट्स हैं, वो यही है कि मैक्सिमम लोग इस मशरूम कल्टिवेशन में आ जाएं, क्योंकि ये एक इंडोर एक्टिविटी है, इसमें कोई ज़मीन नहीं लगती है। इसमें सिंपली एक कमरा लगता है जो स्मॉल स्केल पे करेगा, और जो लार्ज स्केल पे करेगा उसके लिए उसको एक ग्रोइंग रूम बनाने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट के अंडर से वो बनाता है, तो क्रॉप CCR जो होते हैं, क्रॉप कंट्रोल कंडीशन जो होते हैं, क्रॉपिंग रूम्स, वो हम उनको मुहैया करते हैं। तो गर्ज ये है कि जो लोग अभी घर में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, या जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो कस्बों में है, देहातों में है, जहाँ पे ज़मीन कम होती है, या जो गाँव में भी होते हैं, जो अभी बैठे हुए हैं, उनको बेहतर हमारा ये है मशवरा है कि वो इस वेंचर में आए, ये मशरूम कल्टिवेशन में आ जाए। इसके जो ये बहुत ही फ़ायदेमंद जो है काम है, साबित हुआ है। जो हमारे डिपार्टमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम इनको क्वालिटी, जो मेन इसके जो चीज़ें हैं, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, क्वालिटी कंपोस्ट और सुपान प्रोवाइड करें। क्वालिटी कंपोस्ट जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, ये मान लीजिए कि ये इसकी ज़मीन है, और जो सुपान जो होता है वो इसका सीड होता है, बीज होता है। जब वो दोनों क्वालिटी के होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तब हम करेंगे
उम्मीद की इसका जो क्रॉप है वो अच्छा क्वालिटी निकले और इसकी प्रोडक्शन भी है वो अच्छी निकली। तो हमारे जो इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर जो लाल मिट्टी में है, तो हमारा फोकस वहाँ पे क्वालिटी पर रहता है कि जो हमारा जो स्पॉन है वो जो कंपोस्ट हम इस प्रोवाइड करते हैं मशरूम ग्रोवर को, वो बड़ी क्वालिटी का हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं हो, ये सुपीरियर क्वालिटी का हो। तो जैसे इसमें एक टेक्निकलिटीज है, ये प्रोफेशनल वे से हम बनाते हैं, चाहे कंपोस्ट हो चाहे सुपान हो। तो फिर जो ये सबस्ट्रेट होता है, ये कंपोस्ट, ये सीड इसमें लगाना पड़ता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है थॉरोसुपानिंग और होता है लेयर सुपानिंग। थॉरोसुपानिंग में क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं सीड को इसके साथ, कंपोस्ट के साथ। और लेयर सुपानिंग में क्या होता है कि 70 ग्राम आते हैं एक बैग में, 7 kg के बैग में। तो हम 23 ग्राम जो होते हैं वो एक लेयर में डालते हैं, फिर 23 और हो गए 70 ग्राम। तो 70 ग्राम हमें एक बैग में आ जाते हैं। उसके बाद जो मेन केयर है इस ग्रोवर का, वो क्या होता है, उसको टेम्परेचर इसका मेंटेन रखना पड़ता है। जो पहले जो माइसिमिलम रन जो होता है, पहले इसका कंपोस्ट, इसका सुपान का, पहले उसको रखना पड़ता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जब सुपान रन पूरा हो जाए, उसके बाद जब उसमें सुपान अच्छे से हो जाए, उस पर हमें फिर जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो स्टॉप करने के लिए हमें फिर इसको केसिंग करनी पड़ती है। केसिंग के टाइम हमें जब पिन्स निकलनी शुरू होती है, फिर हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है 70 डिग्री, अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब फ्रूटिंग के दौरान तो इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो टेम्परेचर है ये अच्छे से रहे, जो ह्यूमिडिटी है वो ठीक रहे, वेंटिलेशन रहे, कमरा जो है पूरा डार्क हो। तो ये सब पैरामीटर जो है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका भी ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो प्रोडक्शन है ये अच्छी निकले। और हमारे डिपार्टमेंट का जो मेन और एक रोल है कि हम इनको टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल एडवाइसेस, टेक्निकल नो-हाउ प्रोवाइड करते हैं। या कोई भी डिजीज इन्फेस्टेशन हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी मोल्ड आ जाए, तो उस टाइम हम उनको जानकारी देते हैं कि आप उसको कैसे ओवरकम करो। हम साइट पे भी आ जाते हैं जब ये उनको कोई इशू होता है, या उसके बगैर भी साइट पे आ जाते हैं। हम देखते रहते हैं कि जो इस साइकिल अभी जिसका चल रहा है, जो इसके अभी जो कल्टिवेशन यूनिट यहाँ पे चल रहा है, को इसका प्रोग्रेस कैसी है, कोई कंटेक्शन नहीं आ गया। तो जब तक ये पूरा हार्वेस्ट करता है, पैकिंग करता है, तब ये हमारे से कंटेक्ट में रहता है और हम इसको टाइम टू टाइम इसको एडवाइस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हर कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक तो मटेरियल करते हैं, इनपुट मटेरियल जो होता है कंपोस्ट और सुपान। उसके बाद जूनिंग ग्रोइंग फेज हम उनको टेक्निकल नो-हाउ प्रोवाइड करते हैं, लास्ट तक जब तक हार्वेस्ट करते हैं। फिर मार्केट जो है इनका मार्केट और डोर स्टेप्स है, इसका कोई मार्केट कोई इशू नहीं है। और डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव ये भी है, हम इनको क्रॉपिंग कंट्रोल रूम्स भी देते हैं अंडर HADP स्कीम। तो ये जो मटेरियल होता है ये भी ऑन सब्सिडी देते हैं। वो डिपार्टमेंट अपनी हर कोई एफर्ट्स देता है, चाहे जॉइंट डायरेक्टर, वर्दी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, वर्दी जॉइंट डायरेक्टर PCM मशरूम्स, हमारे साइंटिस्ट्स, जो बाकी ऑफिसर्स जो भी मशरूम में हैं, वो उनका एफर्ट रहता है, या डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी मशरूम ऑफिसर्स हैं या बाकी अफसरान हैं, इनका एफर्ट्स होते हैं कि ये जो मशरूम कल्टिवेशन भी अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे मुकाम पे है, जो लोग लोगों का रुझान है इस काम में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ओवरकम हो जाए, और जो मशरूम की प्रोडक्शन और क्वालिटी है, जितनी हमें नीड है, वो फुलफिल हो जाए। एक तो क्वालिटी, एक क्वांटिटी, और जो एक ग्रोवर का इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बूस्ट हो जाए। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, मेरा बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई ग्रोवर अच्छी प्रोडक्शन देता है। इनने ऑलरेडी 12 क्विंटल पिछले दिया है, हार्वेस्ट किया है, तो बैगिंग किया है, तो मार्केट में उन्होंने वो भेजा है। तो अभी इनका ये भी एक क्रॉप तैयार है, तो इन कमिंग डेज ये भी इनके सेल आउट करेंगे, फिर ये और लगाएंगे। और उन्होंने उधर साइड, उस साइड से थोड़ा और लगाया भी है, तो उसको भी आफ्टर सम टाइम बिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इसका भी फ्रूट निकलेगा। तो कहने का यही गर्ज है कि लोगों को आना चाहे इस काम में। ये बड़ा मुफीद काम है, ये बड़ा मुफीद काम है, और घर में अंदर लगाना है, कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें इस टाइम जो है सिटीज़ में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, औरतों ने घर में लगाया है 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर वो अपने काम को जो है बढ़ाते गए। उन्हें अपने खुद के साथ दूसरे को भी इस काम पे लगाया, और इसका मतलब है ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट है, वेंचर है।
तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबों से कि आप मशरूम कल्टीवेशन में आ जाइए। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा वेंचर है ये, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है आप पे। थैंक यू। Ashrafani for India Today in Srinagar.